تو یہ سالانہ 7,20,000 روپے ایک فیملی کو دیا جائے گا اور یہ سہولت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ان کے گھر میں کوئی علیل ہو تو اس کو وہ کسی جو امپینلڈ ہاسپٹلز ہیں اس میں جا کے وہ علاج کروا سکتے ہیں. ان کو اگر باہر سے آنے کی بھی فیسلٹی دی گئی ہے کہ اگر وہ تشریف لائیں تو 1,000 روپیہ کرایہ بھی دیا جائے گا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کی انڈور کی ساری خرچہ جو ہے وہ دیا جائے گا. جب وہ ڈسچارج ہوں گے تو ان کو باقاعدہ ان کے 5 دن کی ان کی دوائی بھی ساتھ دی جائے گی. آپریشن فار ایگزامپل کارڈیولوجی کے اندر سٹینٹس وغیرہ کی پیمنٹ جو ہے وہ بھی ان کارڈز کے تھرو ہوگی. نیورولوجی کا سارا ایکسپینس پے ہوگا. آپ کے سی ٹی اسکینز MRI ان ساروں کا ایکسپینس جو ہے یہ اس کارڈ کے تھرو پے ہوگا تاکہ خدا نخواستہ کسی غریب کے گھر کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جائے تو اس کو اپنی جیب سے کوئی دوائی لینے کی ضرورت نہ پڑے اور نہ کوئی علاج کی خرچہ کرنے کی ضرورت پڑے. اور یہ بڑا ضروری تھا کیونکہ عمران خان صاحب کے مطابق ہم سب سے پہلے جو سب سے غریب لوگ ہیں جو سطح غربت سے نیچے رہتے ہیں جو $2 سے کم پیسے کماتے ہیں ان کو ہم نے سب سے پہلے دینا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد جو ہمارا اگلا پروگرام ہے نیکسٹ فیز کے اندر لوور مڈل کلاس اور جو پروفیشنل لوگ ہیں ان کے لیے ہم ایک باقاعدہ ایک پروجیکٹ بنا رہے ہیں جو ہم انشاءاللہ کیبنٹ کے سامنے رکھنے لگے ہیں کہ وہ لوگ جو سفید پوش ہیں ان کے لیے بھی ہمیں کارڈز دینے چاہیے. وجہ یہ ہے یہ کارڈ کی سہولت جو ہے اس کا ایک بہت پازیٹیو ایفیکٹ خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا جہاں ہم نے دیکھا کہ غریب آدمی نے اپنے دل کا آپریشن بھی کروا لیا اس کارڈ کے ذریعے. ان کے اگر گھر میں کوئی بیماری آئی اب علاج بھی کروا دیا. اور یہی ایک بہت بڑی وجہ تھی کہ خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کو اور ان کی پارٹی کو بہت زیادہ ووٹ ملے. انہی چیزوں کو ہم انشاءاللہ یہاں بھی کامیاب کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پوری کوشش ہے آج یہاں آنے کا مقصد تھا جو ہماری آج سب سے امپورٹنٹ پارٹ تھا ایجنڈا کے اندر کہ جو اس کے کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہیں ان کو ہم یونیورسٹی کے ساتھ اٹیچ کریں. تو سنڈیکیٹ میں یہ فیصلہ ہو گیا ہے اور یہ فیصلہ کر کے یہ ریزولوشن پاس ہو گئی ہے کہ ہم جو کانسٹیٹیوئنٹ کالج ہے جس میں آپ کا پنجاب میڈیکل کالج اور پنجاب ڈینٹل کالج ہے وہ دونوں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوئنٹ کالج اس یونیورسٹی کے ہوں گے تاکہ وہ جو اعتراضات وغیرہ تھے وہ سارے ختم کیے جائیں. اور اس کا فائدہ یہ ہونے لگا ہے کہ اس یونیورسٹی کے تحت اور کالجز بھی اس کے ساتھ اٹیچ ہو سکتے ہیں اور یہ اپنے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز شروع کر سکتے ہیں اور اپنے پوسٹ گریجویٹ پروگرامز کے ساتھ یہ ڈگریز جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں. تو دوسری امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ یہ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ کہ یونیورسٹیز جو ہیں ان کو جتنا ہم انڈیپینڈنٹ کریں جتنا ان کو فائنینشلی اور ایڈمنسٹریٹولی انڈیپینڈنٹ کریں ہم امید رکھتے ہیں کہ بہتر سے بہتر اس میں پرفارمنس ہوگا. تیسری اہم چیز یہ کہ 8 اضلاع جو ہیں وہ پنجاب کے سلیکٹ کر لیے گئے ہیں اپ گریڈ کرنے کے لیے اور وہ اضلاع ہیں جن کے اندر ہمارے جو سوشل انڈیکیٹرز تھے مٹرنل مورٹیلٹی ریشیو اور انفنٹ مورٹیلٹی ریشیو وہ سب سے زیادہ کمزور تھا جس کے اندر جو ضلع ادھر کے علاقے کا ہوا ہے وہ ہے جھنگ. اس کے بعد ہم چنیوٹ یہ 2 ضلع یہاں سے کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد ڈی جی خان راجن پور ادھر سے پھر اس کے بعد مظفر گڑھ قصور اٹک یہ وہ اضلاع ہیں جن کو ہم اپ گریڈ کر کے بیسک ہیلتھ کی یونٹ سے لے کے رائٹ اپ ٹو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل اور پھر ٹرشری کیئر ہاسپٹل کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ کر رہے ہیں تاکہ مسلسل ڈاکٹرز جو ہیں وہ موجود ہوں. بیسک ہیلتھ یونٹ کے اندر تو ہم لوگوں نے انشور کرنا ہے کہ راؤنڈ دا کلاک وہاں وہ سٹاف موجود ہو جو ڈیلیوری کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ ایمبولنس سروسز جو ہیں ان کی باقاعدہ ریفرل سروس ایک پراپر کی جا رہی ہے. رورل ہیلتھ سینٹرز کو باقاعدہ اپ گریڈ کر کے انشور کر رہے ہیں کہ وہاں پیڈیاٹریشن یعنی بچوں کا ڈاکٹر گائناکالوجسٹ وہاں دونوں موجود ہوں. اسی طریقے سے تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہلے 8 ضلع کریں گے اور پھر 8 ضلع کے بعد اگلے 8 ضلع کر کے اسی طریقے سے 5 سال کے اندر ہم لوگوں نے سارے اضلاع جو ہیں کیونکہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر کے اوپر آج تک کسی نے اس طرح توجہ نہیں دی تھی. اس پروگرام کے تحت پہلے فیز کے اندر تقریباً 250 بیسک ہیلتھ یونٹس اپ گریڈ ہو رہے ہیں اور اسی طریقے سے کوئی 32 رورل ہیلتھ سینٹرز اپ گریڈ ہو رہے ہیں. اور ہماری پوری کوشش ہے کہ جو ری ویمپنگ ہو رہی ہے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلس کی وہ اس جون تک مکمل ہو جائے جس میں 25 کے 25 DHQs جو ہیں شامل ہیں. اب تک ہم 7,000 کے قریب 6,800 میڈیکل آفیسرز جو ہیں ان کی تعینات ہو چکی ہے مکمل ہو چکی ہے بلکہ ان کو لگا بھی دیا گیا اور بیسک ہیلتھ یونٹس میں لگا دیا گیا. فیصل آباد کے علاقے کو 200 اور میرا خیال تقریباً 80 میڈیکل افسرز دیے گئے دیہی علاقوں کے لیے. اسی طریقے سے باقاعدہ یہ جو اسپیشلسٹ ہیں
अभी तक 1100 पोस्टें हमने भिजवाई थी पब्लिक सर्विस कमीशन में। 580 पोस्टों के ऊपर ऑलरेडी डॉक्टर सेलेक्ट होके आ चुके हैं और बाकी पोस्टों की आजकल इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। 582 फार्मासिस्ट जो हैं उनका इम्तिहान मुकम्मल हो चुका है और उनकी अब तैनात शुरू हो रही है। और अब ये 5 मार्च से NTS सिस्टम के थ्रू जो ग्रेड 4 से 15 तक हैं उनका बाकायदा टेस्ट अनाउंस हो रहा है। उसमें तकरीबन 15,000 से ज़ायद लोग जो हैं उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगी एंड इट विल बी थ्रू मेरिट। मैं सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ, कोशिश हमारी ये है कि सवाए मेरिट के और कुछ ना हो। इसी तरह डॉक्टर्स को भी लगाया गया है, इसी तरह फार्मासिस्ट को भी लगाया हुआ है और इसी तरह NTS के थ्रू हम ग्रेड 4 से लेके 15 तक। बाकी जो इस वक्त आपके सामने है कि जो सबसे बड़ा बजट है वो इस वक्त हेल्थ ही के पास है और पूरी कोशिश की जा रही है कि हेल्थ के बजट में बिल्कुल कोई रुकावट ना हो, बल्कि अगली दफ़ा हमें उम्मीद है कि इससे डबल हमें बजट मिलेगा। जी बताइए। हेल्थ के ऊपर आपने कहा कि सबसे ज़्यादा बजट है। अगर हम फैसलाबाद की बात करें तो हमारे जो बड़े अस्पताल हैं, सिविल, अलाइड, उसके अलावा चिल्ड्रन अस्पताल, कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल, यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर्स जिस तरह आपने कहा कम है, स्पेशलिस्ट कम है। जो हमारे कैंसर की अद्वियात हैं उनके टेंडर अब हुए हैं, अभी वो TTL के लिए जाएंगी। BHU के ऊपर जो मेडिसन है रवां साल का उसका टेंडर अब हुआ है, अब वो DTL के लिए जाएंगी। तो साल तो ख़त्म हो गया। मैं देखिए मेरे ख्याल को तो अद्वियात मिले ही नहीं, पूरे का पूरा बजट तो आपने रोक लिया। कोई बजट रोका नहीं गया, गलत बयानी मत करिएगा। सारे डिस्ट्रिक्ट्स को मुकम्मल बजट भेज दिया गया है। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है, अगर कहीं डिले हुई है तो जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसने डिले की है और उस लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को ऑलरेडी हमने ऑन बोर्ड उनके खिलाफ एक्शन हो रही है बाकायदा। आपके सामने है कि मुल्तान का CEO भी रिमूव इसी बात पे किया गया है। हमारे पास इन रिज़र्व जो DG ऑफिस है उसने 4 अरब की दवा जो है वो ऑलरेडी ख़रीद ली है टू इंश्योर कि कहीं दवा की कमी ना हो। सारे स्टोर्स हमने खुद चेक किए हैं। टिल 15 to 30th of April हर स्टोर के अंदर एसेंशियल ड्रग्स जो हैं वो मौजूद हैं। इंशाल्लाह फ़िक्र ना करें, दवाई की कोई कमी नहीं होगी। मसला ये होता है इंडोर में दवाई की कमी नहीं होती, इमरजेंसी में कोई नहीं होती। शोर मचता है कि जी आउटडोर में हमें दवाई क्यों नहीं मिलती। अगर हम सारा पाकिस्तान का भी बजट ले लें ना तो हम लोगों की ये रिक्वायरमेंट पूरी नामुमकिन है। तभी हम कोशिश कर रहे हैं कि कार्ड दे दें ताकि लोगों की ये जो मसले मसाइल हैं आउटडोर के वो भी इस तरीके से मुकम्मल हो। तो ये आपको किसी ने गलत खबर दी है। मैं आपको बता रही हूँ, हर हफ्ते एवरी मंडे मॉर्निंग, आज मैं यहाँ आ गई हूँ ना, एवरी मंडे मॉर्निंग बाकायदा सारी CEOs की हम लोग उस पर करते हैं मीटिंग। ये सारे यहाँ खड़े हैं पीछे, हर हफ्ते इनको चेक करते हैं और मेडिसिन की प्रोक्योरमेंट। लेकिन हमारी कोशिश ये है, गलत काम ना करिए ना। ए ना हो मैंने कोई पेपरा रूल्स और रेगुलेशन हम तोड़ें तो कल इन्होंने कोई नैब फड़ के ले जाए। ए लोग ने ना इन्होंने नैब ने नहीं फड़ना और पुराने लोगों ने नैब ने फड़े है इस वजह तो कि दे डिड नॉट फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन। हमारी पूरी कोशिश है रूल्स रेगुलेशन फॉलो। जी 2 साल से ज़्यादा अरसा हो गया अपनी असली हालत में बहाल नहीं हो रही। इंतजामी अमूर जो है मुतासर हो रहे हैं, जो बुनियादी मराकज़ से RSC PHU वो कब असली अपने बहाल हों? देखें बेटा, जब आप 2 साल का जिक्र करते हैं ना तो मैं तो 6 महीने की जिम्मेवारी ले सकती हूँ, 1.5 की तो नहीं लूँगी ना। 1.5 साल जो था वो पिछली हुकूमत से पूछिएगा। इस 6 महीने के अंदर आपके सामने अगर आपको अभी मैंने बात की है कि हम बाकायदा डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सबसे ज़्यादा पसमानदे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें सबसे बुरे वो हैं, उनको सबसे पहले वो देख रहे हैं, उनको अपग्रेड कर रहे हैं और हमारा पूरी कंसंट्रेशन प्रायोरिटी हमारी प्राइमरी हेल्थ केयर के ऊपर है। वजह ये है कि आम आदमी के लिए दही इलाके के अंदर अगर ये सहूलत ना मौजूद हुई तो हम कभी अपने इंडिकेटर्स जो है इम्प्रूव नहीं कर सकते। ये मैं आपको पूरी तसल्ली से कहती हूँ। 30 जून तक जिन 8 ज़िलों की मैंने बात की है वो सारे अपग्रेड होंगे, वहाँ ऑल दी सर्विसेज विल बी अवेलेबल। 2 क्वेश्चन सिर्फ। एक मेडिकल यूनिवर्सिटी बनाने का ऐलान किया गया था, शहबाज शरीफ साहब ने उसका इफ्तिताह किया। ये मेडिकल यूनिवर्सिटी तो है, मेडिकल कॉलेज उसका अच्छा मेडिकल कॉलेज बन गया, बिल्डिंग बन गई, आखिरी लम्हात में आके कहा गया ये नाकाबिल अमल मनसूबा है। देखिए दोनों एंगल में देखिएगा, क्या अगर वो नाकाबिल अमल था तो बनाने वालों के खिलाफ क्या एक्शन किया गया या क्या बनाने वाला ने तो खिलाफ एक सेकंड तो अभी तक वो रुका क्यों हुआ? देखें बेटा, सबसे बड़े बनाने वालों के खिलाफ तो काफ़ी अमल हो रहा है, आपको पता है, जिन्होंने गलत किस्म के काम किए और उल्टे सीधे। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि मेडिकल कॉलेज एक बिल्डिंग नहीं होती, पहले तो ये कंफर्म कर लेना, एक बिल्डिंग नहीं है। बिल्डिंग खड़ा करना तो कोई मुश्किल काम ही नहीं है, क्योंकि वो तो पैसे लग देने, वो चंगे थोड़े जो पैसे बंदे दे जेब भी चले जाने। असल मसला तो ये होता है
कि आपने वहाँ उस्ताद बिठाने हैं, टीचर्स बिठाने हैं जिन्होंने आगे स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। इस वक्त हमारे इनकी गलत पॉलिसियों की वजह से डॉक्टर्स वर नॉट रिक्रूटेड ऑन रेगुलर बेसिस, प्रोफेसर्स को इन्होंने रिक्रूट नहीं किया, इन्होंने डीपीसीज नहीं की, इन्होंने लोगों की प्रमोशन नहीं की। इस वक्त सबसे बड़ा फकदान जो है हमारे पास है वो मेडिकल टीचर्स का है। आपको पता है हमारे 3 मेडिकल कॉलेजेस को हर साल फाइन होता है कि उनकी फैकल्टी मेंबर्स जो है वो पूरे नहीं हैं। तभी आपके सामने मैंने जिक्र किया कि 600 नए मेडिकल टीचर्स भर्ती किए हैं, 600 इंशाल्लाह 500 और आ रहे हैं, और हमने आगे 1100 की वो रख दी है कि आगे जितनी जल्दी डीपीसी इस 6 महीने में हुई है इतनी पिछले 6 साल में नहीं हुई। ये आप जाके किसी डॉक्टर से पूछ लें। प्रमोशन का सिलसिला हम लोगों ने कह रखा है, पब्लिक सर्विस कमीशन को रिक्वेस्ट की हुई है कि आपने कोई और काम नहीं करना, सिर्फ डॉक्टर भर्ती करने हैं, हमने नर्सेज भर्ती करनी है, पैरामेडिकल भर्ती करना है। इसी तरीके से हम लोगों ने डिपार्टमेंट को कह रखा है कि कोई दिन ऐसा ना हो जब डीपीसी ना हो जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन नहीं है। जब हमारे पास उस्तादों की सही तादाद मौजूद होगी तो बिल्डिंग तो खड़ी कर ही देती है ना उन्होंने शहजादिया ने, तो ना शहजादा ने बिल्डिंग जो असी टीचर पा के मेडिकल कॉलेज खोल दिया। मैडम साबिक तौर में आखिरी सवाल अस्पतालों पे अब वन मोर मगर फंड्स ना होने जनरल पेशेंट से क्या मुराद है आपकी, प्राइवेट पेशेंट से क्या मुराद? बेटा ये जो हम लोगों ने किया, देखिए इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, इन मेडिकल कॉलेजेस में बड़े बड़े प्राइवेट कमरे मौजूद हैं हर मेडिकल कॉलेज के अंदर, हर अस्पताल के अंदर। एक फैशन चल पड़ा कि ये सारे जो अस्पताल थे इनके प्राइवेट कमरे जो थे वो लोगों ने इस्तेमाल करने बंद कर दिए, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान हुकूमत को होता था। एक सफ़ेद पोश बंदा जो है वो एक प्राइवेट अस्पताल में नहीं ऑपरेशन कराना चाहता, कम कीमत पे आके वो किसी इधर आके हॉस्पिटल के अंदर करवाना चाहता है, पर वो कहता है कि जी मुझे प्राइवेट कमरा भी दे दें। अब मकसद ये है कि अगर वो प्राइवेट कमरे चालू ही ना हो तो किस तरह। अब हमने जो रेट्स आपको आ रहे हैं ना, ये इनको भेजे हैं सबको कि आप इनको देखें, स्टडी करें और हमें इसके ऊपर वो दें। हम सबको मेंटली तैयार कर रहे हैं, और आप याद रखिएगा मेंटली तैयार कर रहे हैं कि प्रोफेसरान को और हमारे डॉक्टर्स को शाम को यहाँ प्राइवेट प्रैक्टिस करके कम कीमत के अंदर मरीज़ों को भी देखें और मरीज़ों को दाखिल करके उनको ऑपरेशन भी करें। हमें उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह है कि आपको कुछ वक्त अपने अस्पताल को देना पड़ेगा ताकि शाम में भी यहाँ कंसल्टेंट्स मौजूद हों। और ये जो फैसलाबाद मेडिकल कॉलेज है, ये दिस इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इशू। नहीं, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, ये काम पहले होता, आपके पैदा होने से पहले सारे अस्पतालों में प्रैक्टिस होती थी। हमने अपने बच्चे हुकूमत के अस्पतालों में पैदा किए हैं। ਇਹ ਤੇ नवाज शरीफ साहब वगैरह ने कभी हुकूमत के अस्पतालों नहीं आए सन, इस वास्ते उन्होंने ट्रेंड शुरू किया सी। हमने अपने बच्चे पैदा किए, सारे जो जितने ये बड़े बड़े लोग यहाँ बैठे हुए ना, ये सारे गवर्नमेंट के अस्पतालों में इनके बच्चे पैदा होते थे, ऑपरेशंस भी होते थे, सब कुछ होता था। ये ट्रेंड ख़त्म करके आपने, हाँ जी बताइए। देखिए जी, प्राइवेट पेशेंट वो है जो प्राइवेट फैसिलिटी किसी भी सरकारी अस्पताल की लेना चाहता है। जनरल पेशेंट का जो जिक्र है उसके बारे में ये है, कोई इंडोर पेशेंट और कोई वार्ड का मरीज़ और कोई इमरजेंसी के पेशेंट से किसी किस्म के कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। अभी भी आपके आउटडोर पेशेंट से बाकायदा फ़ीस ली जाती है। ये कोई आप अब हमने नहीं की, इससे पहले भी हो रही है। अभी जैसे मैंने अंदर पूछा तो उन्होंने बताया कि 1400 रुपये CT स्कैन का होता है, 1400 रुपये CT स्कैन का होता है, 1000 रुपये आपका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल्स में हो रहा है। हमने इनके सामने ये रेट्स भेजे हैं कि अगर आपके जो आउटडोर के पेशेंट्स हैं जो आके करवाना चाहते हैं और वो यहाँ अस्पताल की सहूलत लेना चाहते हैं तो वो आए के लें। दूसरी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है, ये हमने ऑलरेडी अथॉरिटी दी हुई है सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को, जो नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं आउटडोर के, वो अपनी पर्ची लेके जाएं, वो पर्ची साइन होती है और फ्री हो जाते हैं चार्जेस। ठीक है जी, क्या डॉक्टर तंजीमों ने एहतजाज की धमकी दे दी है? दे एक सेकंड डॉक्टर तंजीमें जो एहतजाज का वो धमकी दे रही है, वो किस चीज़ पे एहतजाज करेंगी? नौकरियां बढ़ा दी, तनख्वाहें बढ़ा दी, नौकरियां बढ़ा दी, तनख्वाहें बढ़ा दी, हर किस्म की सहूलत उनकी इम्प्रूव कर दी, हस्पताल ठीक कर रहे हैं, इमरजेंसी की रिक्वायरमेंट इम्प्रूव कर रहे हैं, उनकी जो एनवायरनमेंट है उसको इम्प्रूव कर रहे हैं, उनके लिए लॉ लेके आ रहे हैं कि डॉक्टरों को प्रोटेक्ट करें। हुण तो पता नहीं फिर केड़ी चीज़ से इतराज़ करेंगे जी।
अच्छा मैडम, ये भी अच्छा शामिल बाय द कर- वे, मैडम, एक शामिल सेकंड, करना एक मिनट, आपका ख्याल है यहाँ क्या है? ये जो मैं मीटिंग अटेंड करी थी, ये क्या है? एक सिंडिकेट है जो बैठा हुआ है और डिसीजन ले रहा है। यह थोड़ा मतलब है कोई हिंदुस्तानों तो नहीं आया, पाकिस्तान के लोग ने, और बड़े अच्छे अच्छे लोग बैठे ने अंदर, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। एक बोर्ड बना के ये वसूल में वो बेचारे अपनी, आपको पता है, आखिर अपना जोर आवरी भी तो दिखानी है ना किसी तरीके से। जी बेटा, आखिरी सवाल। अच्छा, मैडम अगर बजट की बात करें तो पिछली हुकूमत ने शुरू किया था चिल्ड्रन हॉस्पिटल, यहाँ पर दावा किया था एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। अभी तक उसका अगले मरले की भी वो मुकम्मल नहीं हुई, और समनाबाद हॉस्पिटल में भी सामान और मशीनरी कीमती पड़ी ख़राब हो रही है, उसमें भी तामीराती काम रुके हुए हैं, इसका भी बता दें। और समनाबाद हॉस्पिटल की एक शिकायत भी है कि वहाँ डॉक्टर्स रात के वक्त ड्यूटी नहीं देते हैं, तो उसके ऊपर क्या अमल करें कि ड्यूटी पे हों, उसको श्योर किया जाए। लोग अच्छा तो शिकायत देखिए जी, करते हैं। 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो आपने ये बताया कि चिल्ड्रन कॉम्प्लेक्स, अभी मैं अंदर जिक्र कर रही थी, और अभी भी हमने थ्रू की हैं कोई तकरीबन 10 से 12 लाख रुपए, जो बल्कि 15 लाख से ज़्यादा के चेक्स जो पिछली हुकूमत के थे, 100 अरब के हमने चेक ऑनर किए हैं, डिसऑनर्ड चेक्स। 100 अरब थोड़े पैसे नहीं हैं। अब बल्कि ये 100 अरब तो उन्होंने बताया हमें फाइनेंस डिपार्टमेंट के, ये चेक्स हैं जो हमने ऑनर करने हैं। इस 100 अरब के अलावा मैं अपने डिपार्टमेंट में कोई 6 अरब के ऑलरेडी पिछले के वो कहते हैं जी हुकूमत का तरीका होता है कि जी आप थ्रो फॉरवर्ड कर दें। मैं कहा बड़ी गल है, तुसी सारा थ्रो फॉरवर्ड साढ़े वास्ते रखे ऐसी, मतलब आप 112 अरब 113 अरब मेरे फंड्स में से आप कम कर दें, तो बेटा आप बताइए किस तरह काम डेवलपमेंट का होगा। हमने आफ्टर ऑल जो रिकरेंट बजट है, जो आपकी तनख्वाहों का एक्सपेक्ट है, वो अलहदा है। नॉन पे डेवलपमेंट बजट में तो हमारे पास 32 अरब रह गया, उसमें से फिर PKLI, नाम सुना हुआ ना आपके ने, वो जो पंजाब किडनी या पाकिस्तान किडनी लिवर इंस्टीट्यूट, 18 अरब रुपए इस पिछली हुकूमत ने 18 अरब रुपए जुल्म खुदा का एक NGO को दे दिए। उन्होंने कहा जी ए लो जी, तुहाडे कोल 18 अरब रुपए ने, ज़मीन भी साड़ी, हस्पताल तुहाडा हैगा। कैन यू बिलीव इट? अभी हम इसका लॉ जो है वो अभी लेके गए हैं पार्लियामेंट में कि ये 18 अरब रुपए हमारे हैं, ये हस्पताल भी हमारा है, ये ज़मीन भी हमारी है, हम बतौर हुकूमत इस अस्पताल को चलाएंगे, हम किसी NGO को नहीं चलाने देते। इस तरह के काम और जातियाँ, आप उसका रिकरेंट एक्सपेंस जो है वो 2 अरब से 3 अरब रुपए सालाना है। आप सोच नहीं सकते कि किस किस्म की डिसीजंस ली गई और कितना बड़ा नुकसान दिया गया। अपनी तरफ से हमारी पूरी कोशिश है कि डैमेज कंट्रोल करें। आप तसल्ली रखें, आपसे हम कभी गलत बयानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, आप हमें इजाज़त दे दें। थैंक यू वेरी मच।